Hello students, this is exercise 12.3 and in this exercise we will solve the remaining questions. Our first question is question number 13. Figure has been drawn on the board and you will see that in this figure the following informations are given. First one is OPBQ. OPBQ is a quadrant. Okay, quadrant is the 1/4 of a circle. OABC is a square. OABC, this part is a square. Length of OA is given in the question 20 centimeter and we have also to use the value of pi equal to 3.14. So let us solve this question. In this question we have to find out the shaded region. We have not yet drawn the shaded area. This is the shaded area. So we have to find out the area of this portion and this portion. How can we find it? To find this area, at first we will find the area of this quadrant, number 1. Then we will find the area of a square, and after subtracting the area of a square from the area of quadrant, we will get the shaded region. Okay, so this is the question. Let us solve this. So at first we will find the area of quadrant. To get the area of quadrant, you know the formula pi r square by 4. So area of quadrant OPBQ, formula pi r square by 4. The value of pi we have to write 3.14. Radius is given. OA is given. So radius is not given here. We will have to find out the radius. OA is the side of the square. So how can we find the radius? To get the radius, we have to find this length, O to B. And what will be this length? Obviously you know that if this is 20 meter, then 20 centimeter, then this will be also of 20 centimeter. By using the Pythagoras theorem, we can get this length OB as 20 root 2. So we will write here 20 root 2 into 20 root 2. In details, if you want to do, you can do use the Pythagoras theorem in triangle OAB, and after doing that you will get the radius this side as 20 root 2. Pythagoras theorem अगर आप लगाएंगे तो आपको ये 20 root 2 मिल जाएगा. सॉल्व करें. अपॉन में 4 भी है तो देखते हैं. रूट 2 ये 20 को क्रॉस करते हैं, 20 को 4 से, तो 4 5 जा 20. रूट 2 इंटू रूट 2 is 2 and 2 into 20 40 into 5 200. 3.14 into 200. So what will be the calculation? 200 into 3.14, 628. So this is the area of quadrant. Now the area of square. Name of the square is OABC. OABC का एरिया निकालेंगे. इस स्क्वायर का OABC, इसका एरिया होगा साइड इंटू साइड, सिंपल साइड इंटू साइड, 14 into 14, and this is not 14, 20 into 20, and that is 400 centimeter square. ओके, तो हम लोगों ने एरिया स्क्वायर का निकाल लिया, एरिया क्वाड्रेंट का निकाल लिया. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता करना है. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए सीधे स्ट्रेट में माइनस करेंगे. 628 माइनस 400 एंड 2 to 8, और ये 2 to 8
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके r की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फिगर फिर से है, फिर से फिगर बनाना पड़ेगा। तो लेट अस ड्रॉ द फिगर एट फर्स्ट। तो इन दिस क्वेश्चन sector is given. This is a sector. Angle is 30 degree and the radius two part is there. Longer radius is 21 centimeter. Smaller radius from here to here, and this radius is 7 centimeter. Okay. Question is again the find the shaded region. तो ये shaded region निकालना है. This is question number 40, I think. Yes, 40. तो इसमें भी शेडेड रीजन निकालना है। कुछ नाम भी है, लिखना पड़ेगा जिसको। ये है पॉइंट O, D, B, A एंड C। ये पॉइंट्स हैं। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखिए हमारे पास क्या क्या चीज है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में एक बार रेडियस 7 लेना है, एक बार 21। 21 से जो एरिया आएगा उसमें से 7 वाले एरिया को माइनस कर देंगे। कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट होने के बाद आंसर बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बिगर रेडियस को लेकर, फिर एरिया ऑफ सेक्टर स्मॉलर रेडियस के साथ। दोनों को निकाल के माइनस कर देना। आप अलग अलग भी निकाल के कर सकते हो, आप एट ए टाइम भी कर सकते हो। तो चलो करते हैं। एट ए टाइम हम ले रहे हैं, सिंपल है। तो लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। रेडियस ऑफ बिगर सेक्टर R1 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर and radius of a smaller sector R2 है 7 centimeter. Now let us find out the shaded region. Area of shaded region, फॉर्मूले में जाएंगे। थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को सॉल्व कर दे। पाई की जगह, थीटा के जगह पे 30 डिग्री, 360 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 ही है। यस, AOB इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी लिख लिया। तो पाई की वैल्यू 22/7, R1 में 21 स्क्वायर, R2 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये 12, ये 6 और ये 11। तो 11/42 into square of 21 is 441 and this is 49। 11/42, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 11 में से 9 2 3, 13 में से 4 9 and 3, 7/7 we can cross it by 7, 7 6 are 42, 7 5 are 35,
4 and 2, 7 6 ja 42. Now this is by 2, 2 3 ja 6 and 28. 28 into 11 upon 3. Take the multiplication. 28 into 3, it will gives us 28 into 11, 308 upon 3 centimeter square. So this is the required shaded region. The question number 14. Let us have question number 15 here. क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, इसका फिगर दिया हुआ है। फिगर है एक क्वाड्रेंट, फिर से ट्रायंगल शेप है पहले, फिर एक क्वाड्रेंट है ऐसा, और ट्रायंगल से आगे ये क्वाड्रेंट ऐसा कुछ है, और इसके आगे ये सेमी सर्कुलर पार्ट। ये जो पार्ट है ये सेमी सर्कुलर है, नाम है ए बी सी, ए बी और सी। ओके, क्वेश्चन है एबीसी इज ए क्वाड्रेंट। एबीसी, ए बी सी एक क्वाड्रेंट है और रेडियस है 14 सेंटीमीटर। एबीसी इज ए quadrant and radius 14 centimeter. और क्वेश्चन में दिया है ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर। BC, दिस वन BC, तो BC इज डायमीटर, ये सब लिख लिया हमने। एंड सेमी सर्कल ड्रॉन BC एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये है, तो ये एरिया हमको निकालना है। कैसे निकलेगा देखते हैं। गिवन एंड सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नंबर 1, निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, और नंबर सेकंड हो गया। नंबर थर्ड निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तीन चीजें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तीनों निकालने के बाद हमको सिर्फ शेडेड रीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सर्कल को प्लस कर लेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को। तो ट्रायंगल के साथ सेमी सर्कल प्लस हो गया, उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को, ये पार्ट को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये पार्ट को माइनस कर देंगे, और जैसे इसको माइनस करेंगे ये पूरा व्हाइट वाला पार्ट निकल जाएगा, ये शेडेड बचेगा। तो तीन चीजें करनी है, निकालना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ यहाँ पे जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है एबीसी का, मतलब ये जो क्वाड्रेंट है ऐसे, इसका जो रेडियस है मतलब AC 14 सेंटीमीटर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर बाई 4। पाई के लिए कुछ वैल्यू, शायद पाई की वैल्यू नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम। तो 22/7 इंटू 4, आर रेडियस है 14, सॉल्व करें। 11 2 7 एंड 7, 14 इंटू 11 154
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लोग ने क्वाड्रेंट निकाला, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस में 14, हाइट भी 14 होगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो चीजें निकाला, थर्ड निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। लेकिन एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हमारे पास रेडियस चाहिए, जो कि नहीं है, BC है डायमीटर, क्वेश्चन में बोला था, तो हमें पहले BC की लेंथ फाइंड करनी होगी। देखिए ये 14 है, ऑब्वियसली ये भी रेडियस है, तो ये 14 है, हमको ये थर्ड पार्ट BC निकालना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा था, हम लोगों ने डायरेक्ट लिख लिया था, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखिए BC हाइपोटेन्यूज है, तो BC स्क्वायर पहले आया, BC की लेंथ हमें फाइंड करनी है, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 196 प्लस 196, BC स्क्वायर इज 392, और इसका स्क्वायर रूट करोगे आप, BC निकालोगे तो BC की लेंथ होगी 14√2 स्क्वायर रूट करने के बाद। ओके, BC मिल गया, लेकिन हमें BC/2 चाहिए, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू BC/2 एंड दैट इज 14√2/2 and 7, this is 7√2। रेडियस मिला 7√2। रेडियस के बाद हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई r स्क्वायर बाय 2। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की जगह 22/7, R में है 7√2, तो 7√2 अपॉन में एक 2 भी आएगा, ऐसा। देखिए √2 और √2 और 2 कैंसिल हो गया, इस 7 से एक और 7 भी कैंसिल कर दीजिए, तो 22 इंटू 7 154। तीनों एरिया मिल गया। अब हमें एरिया शेडेड रीजन का निकालना है। इसके लिए हमने पहले बात करी थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ में एरिया ऑफ सेमी सर्कल को प्लस करेंगे, और उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो प्लस करना है ट्रायंगल के साथ में क्वाड्रेंट को, तो क्वाड्रेंट है 154, ट्रायंगल था 98, इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल 154 को, माइनस करने के बाद आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा आ गया। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 16, पहले फिगर में एक स्क्वायर है, उसके अंदर डिजाइन बना हुआ है। एक स्क्वायर बनाते हैं, ये स्क्वायर सपोज, और इसके अंदर एक डिजाइन है, कुछ इस तरह से बना है, ऐसा। अब इसके अंदर भी है, जो भी है, हमें इस डिजाइन का एरिया बताना है ना। फाइंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन, जैसे कि शेडेड रीजन था, कुछ उसी टाइप का। यहाँ पे राइट एंगल बनता है, 8 सेंटीमीटर की साइड्स हैं, तो सारे साइड्स 8 के ही होंगे, एंगल्स तो 90 है ही। ओके, कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। ये बीच का जो पार्ट है
ये एरिया हमको फाइंड करना है। ये एरिया बीच वाला हमें फाइंड करना है। हम लोग इस तरह से निकालेंगे। हम लोग पहले निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, तो यहां तक निकल आया एक साइड से, दूसरे साइड से भी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो यहां तक, दोनों को प्लस कर दें और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर से निकालें, यहां से यहां तक का एरिया। इस साइड में भी बीच वाले लाइन को लीजिए, बीच वाले लाइन को देखिए, इस फिगर को दो ट्रायंगल में बांटता है, तो दोनों ट्रायंगल को माइनस कर देंगे ये दोनों क्वाड्रेंट के एरिया से, तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। लेट अस सॉल्व। एट फर्स्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन। ऐसे हमने लिया 2, क्योंकि 2 है, 2 बार ये लेना है हमें, इसको और इसको, इस क्वाड्रेंट को 2 बार क्वाड्रेंट लेना है और 2 बार ट्रायंगल लेना है, तो 2 को बाहर रखा। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 ट्रायंगल, तो 2 तो बाहर है, ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 पाई के जगह पे 22/7, आर है 8 इंटू 8 अपॉन में 4 भी होगा क्योंकि ये 4 है, और माइनस 1/2 इंटू 8 इंटू 8, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 8 4, यहां भी कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 4 2 सा 8, ओके, और कुछ नहीं हो रहा, तो 22 इंटू 16 अपॉन 7 माइनस 32। 22 के साथ 16 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 22 इंटू 16 352 अपॉन 7 माइनस 32, एलसीएम 7 352, 32 इंटू 7, 32 इंटू 7 224, 224, 352 में से 224 को माइनस करें, 352 से 128, 128/7, and this will 256/7, और this is the required answer। ओके, तो हम लोगों ने ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड डिजाइन है, इसका एरिया निकाला। इस तरह से सिंपल तरीका है, इस तरह से आप करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।